Hello, my dear students. How are you all? Okay, students, today we are going to do our third chapter of English main course of 10th standard, and the name of the chapter is Secret of Happiness. Very interesting title. Secret of Happiness. Everybody wants to be happy, isn't it? But what is the secret? How we can be happy? Here, the author, he has given us 4 main points. With those points, we can be happy. These points will tell you what is the secret of happiness. And if you are new to my channel, subscribe my channel and share it with others. And don't forget to hit the bell icon so that whenever I upload my new video, it will be easily approachable to you. Okay, students? Now let's start the chapter. In this chapter, the author tells us how we can be happy, what is the secret of happiness. So he has given us 4 major points which will tell us that what are the keynotes, how we can be happy. But the first one is dynamics of self-realization. Second is you are greater than you think. Third is the escape from fear. And the fourth one is faith in God. Okay, we will just come to know about the first point. This is dynamics of self-realization. Self-realization means when we realize what we are. Everybody has some talents, but we don't know which talent we are having. Whenever we get that realization, that is the best day and you achieve happiness. So in this paragraph, the author tells us that once they were having their class of psychology and all students were sitting there, they were attending the lecture, and the professor, he was of psychology, he told the students that you don't know you have so many powers, but you don't know how to collect those powers, consolidate those powers. If once you come to know about it, you will be the person who is the most happiest one. साइकोलॉजी की क्लास लग रही थी, ऑथर और उसके फ्रेंड्स उसमें थे, और उसमें उनके साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, उन्होंने अपना जब लेक्चर शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी खुशी का रहस्य क्या होता है कि जब हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होती है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि हमने कभी यूज़ ही नहीं की, हमने कभी उनको इकट्ठा ही नहीं किया. अगर हमको इकट्ठा करके सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. So there was one student, he was very good in sports, but he was very poor in studies. उनका एक दोस्त था, ऑथर का, जो कि स्पोर्ट्स में तो नंबर 1 था, लेकिन related to academics, he was good for nothing. So he was considered as if he is a dull student. Every time he has to face very embarrassment. So what happened? Suddenly at that moment, what happened? He just jumped. He enthralled with joy, and he said, "Sir, I got it. That even I have some talent." तो उसने जल्दी से बोला कि सर मुझे पता चल गया है, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कर ली है कि मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है, कुछ खासियत है, और कि मैं गेम्स में बहुत अच्छा हूँ. Then the professor he gave one example, and that example was of the burning glass. Students, you know, when the heat of sun, it just keeps, or it's just falling on the piece of a paper, what will happen? Nothing will happen. But when the same heat, it is passing through a burning glass, a lens, if you just maintain the focus on the paper, you will find that after some time, that heat will be able to burn that piece of paper. There will be one hole. You must be reminding when in your childhood, you must be doing this practical. So, जैसे कि बेटे धूप जो होती है, सूरज की जो रोशनी, जो उसकी जो हीट है, अगर सिंपल पेपर पर पड़ती है तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब वही हीट एक लेंस में से गुजरकर पेपर पर पड़ती है तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन के बाद आप देखते हो कि उस हीट से पेपर के ऊपर एक होल हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी आर फोकसिंग, वी आर कलेक्टिंग, कंसोलिडेटिंग आवर पावर्स, अनयूज्ड पावर्स, व्हाट विल हैपन? There will be one spark. एक चिंगारी जो है वो निकलती है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन की,
और आपको पता चलता है जब आप अपनी सारी जितनी भी अपनी शक्तियां हैं, जितनी भी अपनी पावर्स हैं, उनको इकट्ठे कर लेते हो, कंसंट्रेट कर लेते हो, तो सक्सेस आपकी आपके सामने होती है। Now in the next point, this is you are greater than you think, and in this famous address on the energies of men, William James, a great psychologist, said, "Man habitually uses only a small part of powers which they possess." कहते हैं कि इंसान के अंदर सेकंड हमारा है you are greater than you think. In fact, you don't know how greater you are. हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी पावर है। जितना हम अपना एस्टिमेट लगाते हैं ना, उससे कई ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा टैलेंटेड भी होते हैं हम लोग। ठीक है। सो हियर विलियम जेम्स ही जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट मैन इज ऑलवेज अंडर एस्टिमेटिंग हिज पावर्स, हिज टैलेंट्स, कि जो इंसान है वो अपनी जो उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो कैपेसिटीज हैं, उसका जो कैलिबर है, उसको वो बहुत कम आंकता है, जबकि उसके अंदर ज्यादा है। एक साइंटिस्ट ने बताया कि एक जो एवरेज मैन है ना, जैसे आप या मैं, हम लोग सारे एवरेज पर्सन हैं, तो ये हम लोग अपना 20% ऑफ द टोटल ब्रेन जो है ना, उसका हम यूज करते हैं, बाकी 80% जो है वो अनयूज्ड रहता है। ये नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली वी आर डूइंग द सेम। ओके, सो एट अटमोस्ट अगर कोई बहुत ज्यादा अपना जोर लगाता है तो वो 50% यूज करता है, अपना ब्रेन जो है वो 50% यूज करता है। इट मीन्स कि जो बिल्कुल बिलो एवरेज है वो तो 5 to 6% यूज करते हैं। ठीक है ना। तो कहता है कि आप 50% तक यूज कर सकते हैं, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। सो यू आर ग्रेटर देन यू थिंक। जितना आप सोचती हो ना, उससे आप मच मोर ज्यादा हो। एंड देन in one line he said that in the personality of every individual there is a great reservoir of unused power, but in many of us just miserable little trickle is getting through. कहते हैं हमारे पास रिजर्वियर होता है बेटा, जिसको हम लोग स्टोर हाउस आप कह सकते हो। कहते हैं हमारे अंदर ना कुछ अनयूज्ड पावर्स हैं जिसको हमने कभी यूज नहीं किया, वो हमारे पास काफी स्टोर में पड़ी हुई हैं। अगर हम उस पावर्स को कलेक्ट करें, उनको यूज करें, किसी अच्छे ढंग में अपनी एनर्जी लगाएं, तो हमें पता चलेगा कि वी आर बेटर देन वी थिंक। जितना हम सोचते हैं उससे हम कई गुना ज्यादा बढ़िया है। थर्ड पॉइंट इज द एस्केप फ्रॉम फियर। डरना है ना, डर से छुटकारा। A British publishing house issued some years ago a volume of the sermons under the title "If I Could Preach Only Once." One of these sermons was by Gilbert Chesterton. "If I had only one sermon to preach," Chesterton declared, "it would be sermon against fear." गिलबर्ट चेस्टरटन ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है ना एक बार कोई सर्मन देने का, प्रवचन देने का, तो मेरा होगा कि डर के विरुद्ध एक प्रवचन वो देना चाहेगा। और उसने उसमें कहा कि एवरीबडी हैज सम फियर्स, हमें कुछ ना कुछ डर रहते हैं ना, जैसे फाइनेंशियल फियर, पैसे का डर, आज पैसा है कल को नहीं होगा, तो हम लोग बड़ी पॉलिसीज खरीदते हैं। ठीक है। देन सम फियर ऑफ हेल्थ का फियर, कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। देन द फियर ऑफ सम पास्ट एक्ट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट एक्ट, कि जैसे मैंने पीछे कोई गलत काम किया तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में पता नहीं कैसे आने वाला है। सो दीज आर सम फियर्स। फियर समझ गए हो ना। तो क्या होता है कि दीज फियर्स आर लाइक घोस्ट, ये एक भूत की तरह काम करते हैं जो हमें डराते हैं। दीज ऑलवेज वी गेट अफ्रेड ऑफ दीज फियर्स लाइक घोस्ट्स। भूत की तरह हम लोग इससे डरते हैं। भूत किसी को पता नहीं है ना उसका, लेकिन फिर भी हम लोग से डरते हैं। सिमिलरली फियर का हमें कुछ नहीं पता कि इस डर का क्या रिजल्ट होने वाला है, फिर भी मन में एक डर है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग होती है ना हमें। तो गिलबर्ट चेस्टरटन कहते हैं कि जो डर है ये सबसे हमारी खुशी को खत्म करने वाला सबसे मेन फैक्टर है। सो इसके ऊपर हमें कॉन्कर करना चाहिए, हमें इसके ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए। एंड टू जस्ट मेक इट मोर जस्टिफाइड, ही जस्ट गिव वन एग्जाम्पल। इसको और जस्टिफाई करने के लिए उसने एक एग्जाम्पल दी है। Once what happened in the north woods, it was in jungle, so he was there
एंड ही वॉज जस्ट इन साइड द कैबिन, वो एक कैबिन के अंदर बैठा हुआ था. एंड ऑल ऑफ सडन व्हाट ही डिड ही हियर, ही हर्ड सम साउंड्स. उसको कुछ सुनाई देता है कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं. एंड द साउंड्स आर लाइक सम गैंगस्टर्स आर आउटसाइड, कि जैसे कुछ गैंगस्टर्स जो है ना वो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं अपनी गन्स लेके. तो वो दिस ऑथर ही वाज जस्ट सिटिंग इनसाइड. कहते हैं मैं तो डर गया कि बाहर मैं इतने जंगल में हूँ, कोई भी मेरे आसपास नहीं है, मैं अकेला हूँ और बाहर शायद कोई लुटेरे आए हैं जो मुझे लूटने के लिए या मारने के लिए आए हैं. कहता आफ्टर सम टाइम मिनट्स आई वाज जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग व्हाट टू डू. आफ्टर सम टाइम आई विल बी डेड, मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर के बाद. देन ही थॉट इफ आई एम गोइंग टू डाई देन व्हाई शुडंट आई गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. कहता मेरे मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना बाहर जाके देखूं कि हो क्या रहा है, कितने के गैंगस्टर है, कितने के मशीन गन्स है उनके पास. एज ही फ्लंग्ड ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला व्हाट हैपेंड, ही सॉ वन स्मॉल चिपमंक इज देयर. एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा जो था वो वहां पे फुदक रहा था, उछल कूद कर रहा था, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर. और उसके बिल्कुल शांति में था ना. इट वॉज अ पीसफुल टाइम. सो एट दैट मोमेंट अ स्मॉल साउंड इट वॉज प्रोड्यूसिंग बिग. छोटा सा जो साउंड था वो बड़ा शोर महसूस हो रहा था. सो ही लाफ्ड अ लॉट. उसको बहुत हंसी आई. When he found that oh he was afraid of just a chipmunk. कहते जब तक हम लोग किसी चीज से डरते हैं ना, जब तक हम उसको अच्छे से देख नहीं लेते, उसका डर वैसे ही रहता है. तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से देती हूँ. अब जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती है ना, तो आप जब इतना सारा पानी देखते हो तो आप स्विमिंग करने आप डर जाते हो. लेकिन जब आप एक बार उसके अंदर चले गए, हाथ पाँव मारते हो, तो पता चलता है तो ईजी बात थी. ठीक है ना. सो द फेयर्स जो है ये आपकी खुशी में एक बहुत बड़ी अड़चन है, एक बहुत बड़ी रुकावट है. ठीक है. सो ही सेड दैट वी शुड escape from the fear, and at the last he just told us which is most important point, that is faith in God. Fourth point is faith in God. A great Japanese kagwa, a preacher, a social worker once visited our country. Everyone noted that he carried out himself a sense of peace and poise and inner strength and confidence that was only remarkable. He had discovered a priceless secret, and he gave us his secret by saying that if one will do as he did, immerse oneself over the long period in the grace of God. कहते एक जापानीज था कगुआ, उन्होंने, वो भी एक प्रीचर ही था, प्रचारक ही था. तो उसने जब यहाँ पे आके इतना टाइम स्पेंड किया तो उसने फील किया कि सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम वो होता है जब हम लोग भगवान के अंदर पूरी तरह से रच मिच जाते हैं. ठीक है. जब हम उसकी ग्रेस में, हम उसकी मेहरबानी के अंदर सरेंडर कर देते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम. एंड देन ही कंक्लूडेड द चैप्टर बाय सेइंग दैट दिस इज द रियल एस्केप फ्रॉम फियर, गेट अ डीप अनशेकेबल फेथ इन फैक्ट. कहते हैं हम लोग जब अकेले होते हैं ना, बिल्कुल अकेले, तो हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं, तो उस वक्त एक सुप्रीम पावर होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपको गाइड करती है, आपको देखती है, आपकी हेल्प करती है. तो वो पावर होती है गॉड की. ठीक है. तो फाइनली ही सेड दैट देयर इज अ रियल एस्केप फ्रॉम फियर, और उस वक्त हम पूरी तरह से बच जाते हैं किसी भी डर से. गेट अ डीप अनशेकेबल फेथ इन फैक्ट दैट यू आर नॉट अलोन बट दैट गॉड वॉचेज ओवर यू एंड केयर्स फॉर यू. कहते आप कभी भी अकेले नहीं हो, गॉड हमेशा आपको देख रहा है, आपके वो साथ है, एंड विल ब्रिंग यू थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज. कोई भी आपकी मुसीबत का टाइम है तो उसमें से आपको बाहर निकालने वाले भगवान ही होते हैं. देन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड, और आपका मन पूरा शांति से भर जाएगा. कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा. नॉट फियर विल बी योर्स फॉर एवर. उस वक्त आपके साथ कौन होएगा? आत्मविश्वास, ना कि डर. ओके. सो दीज वर द 4 पॉइंट्स टू गेट हैप्पी. दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस. So my dear students, I will be back with your question answers. Till then, it's a time to say bye-bye.